Separating mixtures of solids. Solids के जो mixtures होते हैं उन्हें separate करने के लिए हमारे पास एक नहीं काफी सारे methods होते हैं, so हम one by one सारे discuss करेंगे. Remember, it was the first column. It was actually the first row in this portion. ठीक है, solid plus solid mixtures, which are actually powdered mixtures. So there were many different properties which were used to separate them. For example, density, for example, solubility, for example, sublimation, magnetism, like that. See? So let's discuss all of these. The separation of a solid from a mixture of solids depends largely on the particular substance being purified. Just substance को purify कर रहे हैं, हम उसकी किसी ऐसी property को जो outstand करती है बाकी तमाम substances की properties से, उसकी basis पर उसे separate करते हैं. Difference in physical properties ढूंढा जाता है, ठीक है, वो usually help करता है. अगर mixture ground कर दिया गया है, ground का मतलब होता है बिल्कुल पाउडर में कन्वर्ट कर देना. ग्राउंडेड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, these are usually the same words at this level. ठीक है, although these words have a difference in them, but वो higher levels के लिए होता है. इस level के लिए powdered, very finely divided और grounded forms एक ही होती है. ठीक है, I hope word powdered से आपको ground और very finely divided भी समझ में आ जाता होगा. ठीक, before any separation is attempted, ये चीज हमें help करती है कि अगर mixture में हम उसे separate कर इस तरह से powdered form में देख रहे हैं तो. ठीक है, अब separations को देखते हैं. First of all, on the basis of differences in density. ठीक, before I start with this topic, before I start with this paragraph, it's important that you define density itself. Now we are done with density from the physics book. We know density is defined by mass per unit volume. When a mass of anything is divided by the volume it occupies, we simply get the value of density. Okay? This is how easily we define density. So in case of solids, different solids have different density values, and on the basis of the differences in density, we can always separate them. Easily speaking, that would be if something weighs more and if something weighs less, they can easily be separated from one another. Now, they're going to give very good examples over here to give you an idea how difference in density is going to be helpful for us for separation purposes. Take a look. Panning for gold is still carried out in the search for new deposits. Panning क्या है? Pan से word से आप familiar होंगे, ठीक है. Usually हमारे पास kitchen utensils में pans exist करते हैं, ठीक है. Panning एक पुराना तरीका है. साउथ अमेरिकन पोर्शन में अमेज़न एक बहुत मशहूर रिवर है. अमेज़न एक ऐसा रिवर है जो अपनी पूरे रास्ते में, ये रिवर सिर्फ एक जगह पर नहीं है, ये रिवर सिर्फ एक जगह पर नहीं है, जो है ना, ये कुछ मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्री से गुजर कर जाता है. ठीक है, और इन डिफरेंट कंट्रीज से गुजर कर जाने में इनके ये गोल्ड माइन से गुजर कर जाता है. ठीक है, सो वहां पर पुराने वक्तों से लोग भी कोशिश किया करते थे कि उस जो अमेज़न रिवर है, उस रिवर को जब भी जाएं, उससे वाटर कंज्यूम करें, तो उसके पास ना छोटे छोटे पैन्स या स्टेनर्स ले जाया करते थे. आई होप यू आर फेमिलियर विद स्टेनर. स्टेनर एक ऐसा यूटेंसिल होता है जिसे हम घरों में अमूमन डेली बेसिस पर चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं. आपको पता है हम टी जो है वो कॉमनली बना रहे होते हैं टी पाउडर से, मिल्क से, शुगर से, इन तरह की चीजों से. लेकिन जो टी पाउडर होता है वो हमारे टी के अंदर बुरा लगता है. तो फाइनली जब हम अपनी टी कंप्लीट कर चुके होते हैं तो लास्ट स्टेप ये होता है कि हमने उसे स्टेन करना होता है. हम उसे फिल्टर कर रहे होते हैं. एक्चुअली जैसा हमने फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में पढ़ा है, जितना टी पाउडर होता है वो सेपरेट कर दिया जाता है और जो सिंपल टी होती है विदाउट टी पाउडर वो हम यूज करते हैं. ठीक है, तो ये बड़ी इजी सी चीज है. यही स्टेनिंग यहाँ पर पैनिंग के नाम से है. ठीक, वो क्या करते थे कि वो ऐसे स्टेनर्स लेते थे और फिर अमेज़न रिवर का जो पानी होता था उसको स्टेन करते थे. उस पानी के नीचे से ऑफ कोर्स रिवर के साथ कुछ सैंड, कुछ सिल्ट, कुछ सॉइल, इस तरह की चीजें आती हैं. तो सॉइल के पीसेस भी आते थे, सैंड के पीसेस भी आते थे. उन पार्टिकल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे वो उस गोल्ड माइन से
अमेज़न रिवर के आने की वजह से छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स होते थे। तो उस अमेज़न रिवर के आसपास बहुत सारी इंसानी बस्तियां बन गई, ठीक है। अब बहुत सारी फैमिलीज ने जाकर रहना शुरू कर दिया, जिनका डेली ये काम होता था कि पूरी पूरी फैमिली, मदर भी, फादर भी, चिल्ड्रन भी, सारी फैमिली उठती थी, अपने अपने हिसाब से बड़े या छोटे पैंस लेते थे, अमेज़न रिवर के जो ना रिवर कॉर्नर्स पे जाते थे, ठीक है, रिवर साइड पे जाते थे और पानी को पैन करना शुरू कर देते थे। सारे दिन में बहुत छोटे छोटे काफी सारे पार्टिकल्स इकट्ठे करते थे, वो ले जाके वहां के उस वक्त के रिच मर्चेंट्स को बेच दिया करते थे, और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो फ्रूट्स या यूजुअली अपनी ब्रेड अर्न किया करते थे। तो ये इनकी बहुत अच्छी अर्निंग सोर्स थी। इन इस जगह से ये रिवर अमेज़न रिवर बेड्स को मैकेनिकली सिफ्ट करना, यानी ये गोल्ड को कलेक्ट करना, पैनिंग करना, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत कॉमन हो गए। ये वर्ड्स भी, ये फ्रेजेस भी बहुत कॉमन हो गए, ठीक। ये मेथड किस बात पे डिपेंड करता है? ये मेथड इस बात पे डिपेंड करता है कि गोल्ड डस्ट जो होता है, यानी गोल्ड के छोटे छोटे जर्रों को हम गोल्ड डस्ट कहते हैं, ये डेंस होती है बाकी तमाम सब्सटेंसेस है रिवर सेडिमेंट के अंदर। रिवर सेडिमेंट रिवर बेड का वो हिस्सा होता है जिसमें सॉइल होती है, सैंड होती है, सिल्ट होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ होता है, उससे रिवर सेडिमेंट बोला। This type of method is also used in purifying the ores of zinc and copper. तो ये जिंक और कॉपर के ओर्स को भी प्योरीफाई करने के लिए मिलता था। ना सिर्फ ये, बल्कि उस वक्त में भी ऐसा होता था, और यूजुअली दुनिया में ऐसा है कि गोल्ड और कॉपर माइंस अमूमन साथ साथ होती हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास जिंक और कॉपर, या अमूमन कॉपर फॉर एग्जांपल, वो गोल्ड के साथ ही आया। कॉपर का कलर भी जो होता है वो थोड़ा सा रेलेवेंट होता है आम मेटल से हट के, ठीक है, क्योंकि कॉपर और गोल्ड दो बहुत वो मेटल्स हैं जो बाकी मेटल से जरा हट के कलर रखते हैं। नेचुरल कलर की बात हो रही है, वरना सारे मेटल्स का जो पेरेंट्स होता है वो सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक। तो ये मेटल्स जो थे ये लेस डेंस हैं, तो ये यूजुअली समटाइम्स सरफेस पे फ्लोट कर जाते थे। तो ये गोल्ड जो है वो हेवी है, गोल्ड की डेंसिटी हाई है, तो गोल्ड अमूमन नीचे सेटल डाउन कर जाता था, ठीक। ये जो डेंसिटी वाली बात है, ये हमने सिर्फ सॉलिड्स के लिए नहीं, आज तो हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, कल हम लिक्विड्स पढ़ रहे थे, तो कल भी हमने एक डायग्राम में की थी। आपको याद हुआ कि जब हमने ये सेपरेटिंग फनल की डायग्राम देखी थी, और जब हमने दो सेपरेट लिक्विड लेयर्स की बात की थी, तो हमने बताया था कि जो लिक्विड लेयर टॉप पर होती है वो इसलिए टॉप पर होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी लो होती है, और जो लिक्विड लेयर बॉटम पे होती है वो इसलिए बॉटम पे होती है कि उसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक। तो इस वजह से हमने डेंसिटी डिफरेंस बताया, बट दिस वाज फॉर लिक्विड्स। आज हम सॉलिड्स के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने सिंपल तरीके से ये कह दिया कि अमेज़न रिवर का जो पानी है, उस पानी के अंदर अमूमन कॉपर और जिंक वगैरह चूंकि लाइटर है, तो वो ऊपर फ्लोट भी कर जाते थे। गोल्ड चूंकि हैवी है, तो गोल्ड का चाहे छोटा पार्टिकल हो चाहे बड़ा, वो कम ही फ्लोट किया करता था, वो नीचे सेटल डाउन रहता है, ठीक है। वो पानी से मूव जरूर कर जाता, लेकिन प्रॉपर्ली फ्लोट करने या की बात उसके लिए नहीं आती। ये सारा समझ में आता है। यूजुअली इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम्स में, बट एज इट रिलेट्स टू सम पास्ट इवेंट्स इट शुड बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। तो सबको समझ आता है, अगर क्वेश्चन हो ना समझ में आया हो तो जरूर पूछें। All right, if that's clear, moving forward, the next would be separation based upon magnetic properties. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से स्टूडेंट्स अमूमन फेमिलियर होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ाया होता छोटी क्लासेस से, ठीक है। क्लास 5 में, 6 में, 7 में हमने यूजुअली डिस्कशन की होती है मैग्नेट की, और स्टूडेंट्स को बताया होता है मैग्नेट क्या होता है। एक्चुअली अर्थ इज लाइक अ जायंट मैग्नेट, एंड देयर आर सम स्पेसिफिक मेटल्स जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखती हैं या मैग्नेटिक रिपल्शन रखती हैं। In specific, there are three metals which have this property, and that is iron, nickel, and copper. ठीक है, तो इन एलिमेंट्स का ये होता है कि ये जब मैग्नेट के करीब आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर पोल्स, आई होप आपने पोल्स फिजिक्स में या अपनी पुरानी साइंस बुक्स में स्टडी किए होंगे। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं,
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। और अगर इस तरह से मैग्नेट और जो मेटल है उनके पोल्स एक जैसे हों तो वो रिपेल कर जाते हैं, और अगर डिफरेंट हों तो वो अट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक आयरन ओर जो होता है, आयरन ओर यानी कि अनइम्प्योर पीसेस ऑफ आयरन इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं क्रश्ड ओर से इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हुए। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? डज एनीवन नो? यूजुअली दे आर टॉट इन क्लास Yes, 6। sir. जी, एक्सप्लेन करेंगे Yes, sir. बेटा क्या होते हैं It's इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? a magnet. It's a magnet that turns on when you give it electricity. वेरी गुड, Power it on. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स करेक्ट। ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े आयरन पीसेस लेते हैं, हम उससे गिर्द वायर्स जो है वो स्पिन कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, उससे गिर्द अच्छी तरह से हम वायर लपेट देते हैं सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ, और फिर जब हम उस आयरन पीस से गिर्द इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, उसे करंट देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा आयरन पीस एक बहुत जायंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे मैग्नेट्स जो यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाए जाते हैं, कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन है वो मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी वो मैग्नेट के बजाय एक सिंपल आयरन पीस में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बुलाते हैं। व्हाई? बिकॉज द थिंग एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट till there is electricity in it. As soon as we turn off the electricity, the thing does not act like a magnet anymore. ठीक। तो अमेज़ोनियन गोल्ड डिगिंग्स में मैग्नेट्स यूज किए जाते थे ताकि वो क्लीन कर सके आयरन कंटेनिंग रेड ब्राउन डस्ट पाउडर्ड गोल्ड से, ताकि हम उसे सेपरेट कर सके। इवन यही नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगहों पे ये चीज इस्तेमाल होती है। ओके, आई होप कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली मेल स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कार्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, वो जानते होंगे कि हमारे पास जंक यार्ड टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं ऐसी जगहों के लिए जहां पर हम पुरानी कार्स को जाके डंप कर देते हैं। जो कार बिल्कुल पुरानी हो गई है, किसी तरह से चल भी नहीं सकती, अब किसी काम की भी नहीं है, उसके अंदर रिपेयर्स भी बहुत ज्यादा यूज हो चुकी हुई हैं, वो 20-25 ईयर्स की वर्किंग भी कर चुकी हुई है, वो किसी तरह इस्तेमाल नहीं होती, जहां पर हम उस कार को जाके फेंक देंगे उसको हम जंकयार्ड कहते हैं, ठीक है। अब जंकयार्ड में ओल्ड कार्स होती हैं, now those cars are not usable as cars, but there is still a lot of metal from those cars which can be recovered and then used, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसी रिकवरिंग के लिए यूजुअली जब आयरन बेस्ड मेटल को रीयूज करने की, रिसाइकिल करने की बारी आती है, तो हम उसे सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। तो हमारे पास जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो उन पूरी पूरी कार्स को क्रेन्स की तरह को पिक कर सकते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रॉप कर सकते हैं। Now, there are many TV channels which work on this kind of stuff, shows documentaries which students can see and learn a lot of new things from them. ठीक, हमारे पास बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, मैं सब नाम तो नहीं लेता, लेकिन यूजुअली स्टूडेंट्स पे फेमिलियर होते हैं कि किस तरह के चैनल्स पर यूजुअली लर्निंग या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज आती है, ठीक। इसी तरह से एनवायरमेंटली या इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हमारे पास प्रोसेस है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स का। जैसे कि मैंने अभी बताया, आयरन ऑब्जेक्ट्स को पिक करते हैं हम स्क्रैप से, या थ्रोन अवे मटेरियल जिसे हम स्क्रैप बुला रहे हैं इस वक्त, ठीक है, उससे यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नाउ दिस डजंट जस्ट एंड ओवर हियर, हमारे पास नेक्स्ट है सेपरेशन बेस्ड अपॉन डिफरेंसेस इन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये जो सॉल्युबिलिटी वाला यहाँ पर इन्होंने पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक, ये बड़ा सिंपल है। हमारे पास एक बड़ा यूजफुल वे होता है सेपरेट करना एक सॉल्युबल सब्सटेंस को सॉलिड मिक्सचर से। पहले हम मिक्सचर को लेते हैं, उसे ग्राउंड कर लेते हैं टू अ पाउडर, ठीक है। ये यूजुअली हम क्रशिंग से, ग्राइंडिंग से करते हैं, ठीक। एक सूटेबल लिक्विड सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, इस सॉल्वेंट को डिसॉल्व कराया जाता है वन ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट बट नॉट द अदर्स। सॉल्वेंट ऑफन वाटर होता है। वाटर क्यों होता है? वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। व्हेन इट कम्स टू सॉल्वेंट्स, वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर चीजें वाटर के अंदर मिक्स हो जाती हैं। इसी वजह से दुनिया के तमाम सॉल्वेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर कंसिडर किया जाता है, और आप देखेंगे कि आपकी डेली लाइफ में भी सबसे ज्यादा यूज वाटर का ही होता है, ठीक।
दूसरे लिक्विड्स भी यूजफुल हो सकते हैं, इनकार नहीं किया जाता इस बात से, ठीक है, they might be useful as well. The mixture of the solvent is then warmed instead. Care must be taken at the warming stage that the solvent other than the water, ठीक है, कि हम उसे ध्यान से करें, because there are some solvents which can easily catch fire. For example, अल्कोहल की हम इससे पहले बात कर चुके होते हैं बेटा, अल्कोहल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, but there is a problem, alcohol can easily catch fire. अल्कोहल इतनी आसानी से फायर कैच कर सकता है कि अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करें तो इट मे गो बूम, एक्सप्लोजन एंड इट मे बर्न यू अप, ठीक है। सो ऐसे कोई भी सॉल्वेंट्स जिसमें अल्कोहल है, पेट्रोल है, स्पिरिट है, ठीक है, ये सारे बहुत इजीली फायर कैच कर सकते हैं। इनसे ना सिर्फ छोटा सा बल्कि बड़ा हादसा हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर इनकी ज्यादा अमाउंट्स हो और आप फायर को मिस हैंडल करें तो चांसेस हैं कि आप भी बुरी तरह से बर्न हो जाएं, और इवन इसमें डेथ केसेस भी देखे गए। So in these cases we usually advise safety even for students, teachers or anyone who is performing this kind of experiment, ठीक है। Hence, they have used this line, care must be taken at the warming stage when using solvents other than water. Water एक बहुत अच्छा solvent है, इस लिहाज से कि हमारे पास उसको यूज किया जा सकता है इस पर्पस के लिए कि आप उससे फायर को पुट आउट कर दें, ठीक है ना, एक्सटिंग्विश कर दें। लेकिन वाटर के अलावा ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं जो एक्चुअली फायर को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। Now, the warm mixture is then filtered, which is given in figure 2.11, and this, of course, the filtration apparatus हम उससे familiar हैं, इस figure पे मैं दोबारा वापस नहीं जा रहा, ठीक है। This leaves insoluble substances as residue on the top of the filter paper, of course, and which can be dried. The soluble substance is the liquid filtrate. Dry crystals can be obtained by evaporation and crystallization. Jifnan. सर हैंड सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है सर, तो उसमें से सर कैसे वो हो जाता है सर फायर? सॉरी, होम सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसके आगे आपने क्या कहा? सर तो उसमें फायर कैसे लग जाएगी सर? बेटा होम सैनिटाइजर भी इजीली फायर कैच कर लेता है, बल्कि उसके साथ तो वो एक मजाया सा एक्सपेरिमेंट भी होता है जो किया होता है कि होम सैनिटाइजर को लेकर आपने हाथ पे रखा और उसके ऊपर फायर लगा दी तो आपके हाथ को आग नहीं लगती लेकिन ऊपर फायर चलता रहता है। वो एक फन एक्सपेरिमेंट है जो आपने देखा होगा कभी, राइट? आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? यस सर। हाँ, तो व्हाट्स योर क्वेश्चन? उससे फायर कैसे लग जाती है? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल अल्कोहल्स कैच फायर, इस तरह से उसे आग लग जाती है। सर अगर उसमें वो ऑर्गेनिक होते हैं अल्कोहल हो तो उसमें सर फायर लग सकती है, थोड़ा सा भी हो तो। नहीं, इतना थोड़ा होने पे तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से अल्कोहल पे भी समटाइम्स चीजें फायर कैच कर लेती हैं। डिपेंड इस चीज पे करता है कि वो चीज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है या वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो अगर तो आप किसी चीज को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहने देते हैं, यानी अल्कोहल अल्कोहल ही है, तो हाँ बेटा वो फायर कैच कर सकता है। लेकिन अल्कोहल अगर किसी चीज से रिएक्ट कर जाएगा और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेगा, फिर शायद ये पॉसिबल है कि वो फायर कैच ना करे, ठीक है। समझ आ गया अफनान का? और सर कहते हैं फन एक्सपेरिमेंट होता है कि आप अपने हाथ पे सैनिटाइजर रख के उस पे आग जला देते हो, फिर हाथ को आग नहीं लगती, तो फिर हर कोई नहीं करता। हाँ मरियम बेटा, is that a question or are you talking to someone? मैं नहीं। मरियम मुस्तफा बेटा, आपका माइक अभी भी ऑन है। Okay. Pay attention to the class. Try not to talk to anyone, ठीक है, around you. And especially do not talk to anyone around you with your mic on. अच्छा, so अफनान बेटा क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया? जब तक अल्कोहल अल्कोहल की फॉर्म में है फायर कैच कर लेगा, अगर वो रिएक्ट करके किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर चांसेस हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है। Okay, so we were talking about the last line of this paragraph, that this process is then also known as crystallization. So in fact, आप
देखेंगे कि IGCSE past papers में ये जो separation based upon differences in solubility की heading है, ये usually चूंकि इस सारे process को उसने crystallization का नाम दिया है, तो वो इसे crystallization के नाम से ही पूछेगा एग्जाम्स में। एग्जाम्स में crystallization एक बहुत common question है, ठीक है? And let me clarify it over here with the help of some text that, just a second. That crystallization, which is usually asked in exams as a question, does actually contains of 4 steps. So what we have studied in this entire paragraph can be summarized into 4 steps. Number 1, formation of solution. You might want to write that down. Crystallization में ऐसा होता है। Sir, crystallization में ऐसा होता है। ऐसा आता है मतलब बेटा, मैंने of course CRYS लिखा हुआ है. Oh, you're talking about Z and S. Yeah, that's just an American and British difference. ठीक है, Americans और British differences में बहुत सारे ऐसे spelling differences भी हैं बेटा, जिसमें जो है ना वो एक type, एक nation जो है वो उसे Z से लिख रही है और एक nation उसे S से लिख रही है. So both are correct. What we actually do is that we try to follow your book. हम आपकी book की तरतीब से चलने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं जैसे आपकी बुक लिख रही है, आपकी बुक एस से क्रिस्टलाइजेशन लिख रही है, सो लेट्स कीप राइटिंग इट विद एस, ठीक है ना? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, as a 4-step process. Number 1 is formation of solution. Why am I writing these 4 steps? Because जब एग्जाम्स में से क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है तो यूजुअली वो आपसे स्टेप्स पूछते हैं इसके. So first step is formation of solution. How come I come with this step? Take a look at the second line of the paragraph. The mixture is first ground to powder. A suitable solvent is added. As soon as add a solvent, this becomes a solution. Okay? So the first step was formation of a solution. Okay? The second step is heating the solution. फिर आप देखेंगे कि सेकंड स्टेप ये है कि हम उसे स्लाइटली वार्म करते हैं. इस स्टेप पे उसने कहा है कि केयर की जरूरत है. अगर आपने सॉल्वेंट वाटर यूज किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है तो उसे वार्म करते हुए, इसे हीट अप करते हुए आपको थोड़ी सी केयर करनी है. ठीक है, इस केयर में स्पेसिफिकली ये केयर शामिल है कि उससे फायर जो है वो स्टार्ट ना हो, बिकॉज इफ दैट हैपेंस दैट कैन बी एक्चुअली वेरी डेंजरस फॉर यू. ठीक है, so the second step is heating of solution. The third step would be filtration of solution. ठीक है, so third step में हम filter करते हैं solution को. ये step हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है? The second last line in this paragraph, right on top of my written text, आपको मिलेगा that the warm mixture is filtered. वो तो हमारे पास warm mixture है, उसे हम filter करते हैं. फिल्टर करने से क्या होगा? मिक्सचर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ये हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं. एक्चुअली फिल्ट्रेशन प्रोसेस लीव्स 2 पार्ट्स. द पार्ट दैट इज लेफ्ट ऑन टॉप ऑफ फिल्टर पेपर इज नोन एज रेसिड्यू, एंड द पार्ट दैट इज लेफ्ट at the bottom and usually in the flask or in a beaker is actually the filtrate. ठीक है, so ये दोनों पार्ट्स हम पहले स्टडी कर चुके हुए हैं. Let's move on to the fourth and last step. The fourth and last step is actually drying of crystals. ठीक है, तो हमारे पास इस पे जो crystals होते हैं उन्हें हम dry करते हैं. This fourth step is also itself known as crystallization. ठीक है, so the whole procedure is known as crystallization because of the fourth step. So fourth step के नाम भी हम crystallization रखते हैं, whole process को भी crystallization कहते हैं. Please mark and note down the steps, because there are many questions in past papers where they don't ask you to write the whole paragraph. They actually want you to summarize the paragraph into 2 lines. To do that easily and to also help you with memorization, what we do is that we number the steps. So it is very easy for students to write 4 simple steps and memorize them. Okay, so this separation based on differences in solubility is actually crystallization process,
which is covered in 4 steps. Are we clear about these 4 steps? Any questions, class? Make sure you write these steps down on your book. On the same space, जहां पर मैंने लिखा हुआ है वहीं पर आप भी लिख लें. Are we done writing? Can I raise it? Girls and boys, are we done writing? Or are we still writing? If we're still writing, I can give you a couple of minutes, but make sure you quickly note it down so that we can move on to the next portion. Done, sir. Okay, good, beta. So let's move on to the next portion. Now, with this portion, we do have a diagram, and that diagram is not actually given over here. It's given on the next page. Take a look. This is the portion where we are evaporating the excess of solvent, and we are converting them or warming them up to make sure that the mixture is separated into 2 parts. Now, take a look. This is one of the evaporation methods. This method should not be used if the solvent is flammable. Okay? Instead of using an electrical heating element, an oil or water bath is used like this. Take a look. We have a Bunsen burner. This burner was made by a scientist, the name of whom was Bunsen, and this burner is known as Bunsen burner. We also have a stand over here, a stand with 3 legs. First leg, second leg, third leg. This is known as a tripod stand. Okay? A stand having 3 legs, right? Tripod stand. Then there is a networked structure over here, usually known as wire gauze, or simply speaking as gauze. I hope you're familiar with that, or you have seen it with your own eyes in experiments during 5th class, 6th class, or 7th class. Then you might also be familiar with the beaker. The beaker over here is filled with water, the water which is being heated and is currently denoted as boiling water. Then we have a solution in evaporating basin that actually, now this is an indirect method of heating. We're first heating up some water. That water is being boiled and passing on its heat to the evaporating basin. In that basin, we have a solution. The solution is being stirred with a glass rod, and that solution is being evaporated so that it can be converted into pure crystals. When a solvent is evaporating, dip a glass rod in the solution from time to time. When small crystals form on the rod, take the solution off the water bath and leave it to cool, because in that way it would get dried automatically under the fan. All right. So actually they're trying to tell you different methods of evaporation. एक evaporation technique तो हर student को पता होती है कि आप एक evaporating basin या एक utensil के अंदर वो water लें या वो solution लें जिसे आपने evaporate करना है और इसे simply fire पे रखते हैं. But अभी हम आपको बता रहे हैं एक क्या मेरी आवाज आ रही है students? Yes, sir. Alright. शहराम बेटा अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो probably आपके end पे problem हो सकता है. अगर ज़्यादा students को, I mean सारे students को मेरी आवाज नहीं आ रही, then I need to restart my internet connection. लेकिन अभी students बता रहे हैं कि कुछ students को आवाज आ रही है, ठीक है? So make sure आप अपने end पर net check कर लें. अगर ज़्यादा students को या सबको आवाज नहीं आएगी, फिर मैं अपने end पर net check कर लूँगा, ठीक है? So coming back to the point, डायरेक्ट हीटिंग और डायरेक्ट एवेपोरेशन इससे स्टूडेंट्स फेमिलियर होते हैं. हमारे पास चूंकि अब नेक्स्ट स्टेप है, हम उसे ज्यादा एडवांस स्टडी करना है, तो हम इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं. इनडायरेक्ट में हमारे पास एक ऑयल बाथ पहले तस्करा कर चुके हुए हैं, वाटर बाथ आपके सामने ड्रॉ हुआ है. इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल्स कोट कर चुका हूँ सॉल्ट बाथ की या सैंड बाथ की, और मैंने आपको बताया हुआ है जिस तरह हमारे पास समटाइम्स रोड एंड पे लोग खड़े होते हैं जो हमें जो है सैंड बाथ यूज करते हुए छोटी छोटी चीजें जैसे मकई के दाने या चने या इस तरह की चीजें भून के देते हैं जो बड़े हम शौक से खाते हैं. स्पेशली गर्ल्स अगर वो थोड़ी सी चटपटी हो, उसके ऊपर कुछ और डाला हो तो वो उसे पसंद भी करती हैं. एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड, लेट मी टेल यू,
ठीक है, बस उसे क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर सैंड नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो नुकसानदेह होती है। सैंड आपके खाने के अंदर शामिल किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। अदरवाइज दैट इज अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड। वो सैंड बाथ होता है। आप देखेंगे कि उसके पास एक बड़ा सारा यूटेंसिल होता है जिसमें उसने या तो सैंड या फिर सॉल्ट या फिर सैंड और सॉल्ट का एक मिक्सचर रखा होता है। हीट वो सैंड या सॉल्ट को करता है, सैंड या सॉल्ट इन टर्न फिर उस चीज को हम जो भी यूज कर रहे हो, अगर हम छली की बात या मकई के दानों की बात करें तो हम मेज यूज कर रहे हैं एक्चुअली, और अगर हम सादे चनों की बात करें तो चनों को हम चिकपीस बुलाते हैं, चिकपीस यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो वो सैंड बाथ ट्रीटेड चिकपीस जो होते हैं वो एक्चुअली बड़े टेस्टी फ्लेवर देते हैं, ठीक। तो ये कॉमन चीज है जो हम रोड साइड से यूज कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में आप कहीं पर भी ये रोड साइड पर मिल जाएगा, ठीक। So now we are familiar with all kinds of evaporation processes, be it a water bath or a sand bath or an oil bath or a salt bath. You're familiar with different kinds of baths. Okay. If you have any question from these baths, please let me know. No, sir. All right. Then it leaves us with only one process from this solid portion. Remember, we started off with separating mixtures of solids, and we done with differences in density or in magnetic properties or in solubility. The last thing we need to go with is difference based upon sublimation. Okay? A solid that sublimes can be separated easily from others. For example, take a look over here. For this paragraph, for these two lines, we only have this diagram. Take a look. This diagram is actually a mixture of ammonium chloride, which was an example for sublimation. जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पेज पर हमारे पास सब्लिमेशन की डेफिनेशन थी, और वहां पर उसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको अमोनियम क्लोराइड नोट करवाया था। ये वही अमोनियम क्लोराइड है, ये सब्लाइम होगा, मींस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा और गैस से दोबारा डायरेक्टली बैक टू सॉलिड कन्वर्ट होगा, ये कभी लिक्विड शेप में नहीं जाता है। दूसरा हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जो प्रॉपरली मेल्ट और बॉयल होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस शेप में जाता है, और गैस से दोबारा लिक्विड और लिक्विड से दोबारा सॉलिड शेप में वापस आता है। उसका एक पाउडर्ड मिक्सचर हमारे पास एक बड़ी बॉइलिंग ट्यूब जो होती है वो एक वाइड ट्यूब होती है जो कि इतनी नैरो नहीं होती। हाउएवर टेस्ट ट्यूब जो होती है वो नैरो होती है। आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब का साइज छोटा है, यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब का साइज बड़ा है। ऐसा ही है लैब में, अगर आप बड़ी ट्यूब्स यूज करें तो आप उन्हें बॉइलिंग ट्यूब्स बुलाते हैं, और छोटी ट्यूब्स को हम टेस्ट ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने एक कोल्ड वाटर सिस्टम रखा हुआ है जो एक डिलीवरी पाइप के जरिए इसके अंदर आ रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब से ही बाहर चला जाता है। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर वाटर नहीं आता। बॉइलिंग ट्यूब को हम बॉटम से हीट करते हैं, ऑफ कोर्स ये मिक्सचर हीट होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड का फर्स्ट स्टेप जो होगा वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगी, मेल्ट होना, जिसकी वजह से ये इधर ही रहेगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सब्लिमेशन होगा, क्योंकि सब्लिमेटिंग कंपाउंड्स में कोई और स्टेप नहीं होता। तो वो सब्लाइम होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। जब गैस राइज अप करेगी तो हमारे पास एक ठंडी ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कोल्ड वाटर आ रहा है, वो चूंकि ठंडी है तो वहां जाते ही अमोनियम क्लोराइड दोबारा वहां पर कंडेंस करेगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड कभी लिक्विड शेप में नहीं आता, वो गैस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, गैस राइज अप करती है, दोबारा कोल्ड वाटर से इंटच होते ही, कोल्ड वाटर टेस्ट ट्यूब से इंटच होते ही वो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सॉलिड यूजुअली इधर स्टिक कर जाता है। तो इधर से जितना अमोनियम क्लोराइड होगा स्लोली वो गैस के तौर पर राइज करेगा और इधर स्टिक करता जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। So things that can sublime can be separated by this simple method in lab, जिसमें जो चीज सब्लाइम करती है अमोनियम क्लोराइड वो आहिस्ता आहिस्ता सारा यहाँ पर स्टिक कर जाएगा, और जो चीज सब्लाइम नहीं करती सोडियम क्लोराइड वो यहाँ बच जाएगा। So that's how we separate substances based upon sublimation. If you don't understand anything from this diagram, please ask. And this concludes our solid-solid mixtures differences. Now, there are 4 differences that we have studied today: solubility, sublimation, magnetic properties, and the differences in density. I hope that's clear, and we are done for today.